all the CA Foundation students. Welcome to the fifth lecture for CA Foundation Law. यहाँ पर हम 15 मिनट्स में वो सारे क्वेश्चंस करते हैं जो मुझे लगता है थोड़े ट्रिकी है, इम्पॉर्टेंट है, थोड़े डिफरेंट है, या उन क्वेश्चंस में नॉर्मली स्टूडेंट्स को डाउट रहता है. इफ़ यू आर वॉचिंग माई वीडियो फॉर द फर्स्ट टाइम, आई एम CA Preeti Agarwal and I make videos specially for you. Visit my website theorymasterslearning.com for CA books and lectures and subscribe to my YouTube channel Theory Masters Learning and hit the bell icon ताकि आपको इन बूस्टर वीडियोस का नोटिफिकेशन आता रहे. Asking doubts has become very easy now. Post in your doubts on the doubt forum of my website theorymasterslearning.com. You can also upload an image, mention your doubt in the description box, and we'll get back to you on the same day. So what are you waiting for? Start posting your doubts. Don't keep them in your mind. स्टूडेंट्स, आज जो सबसे पहला क्वेश्चन है जो मैंने आइडेंटिफाई किया है दैट रिलेट्स टू ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. इट्स अ स्टडी मटेरियल क्वेश्चन. ये वो क्वेश्चन है जिसमें मैक्सिमम स्टूडेंट्स को डाउट आता है कि मैम इसका कैलकुलेशन कैसे किया, ये बताइए ना कि इसमें हमको वो जो डैमेजेस है वो कैसे आएंगे. उसमें से लेट अस डिस्कस क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन शायद आपने किया भी होगा, बट लेट अस रीड इट क्विकली सो दैट यू आर एबल टू रिकॉल द क्वेश्चन एंड द कॉन्सेप्ट ऑल्सो. X entered into a contract with Y to supply 1,000 bottles at 5 rupees per bottle to be delivered at a specific time. Thereafter, X contracts with Z for the purchase of 1,000 bottles at 4.5 rupees per bottle. Wait, whenever you get a question जहाँ पर बहुत सारे numbers है, it is always better टू राइट एंड देन कंटिन्यू. तो देखो मैंने कैसे इसको एक चार्ट फॉर्मेट में बना दिया है. ये अगर आपका रेडी हो जाएगा ना, देन बाद में क्या करना है आपको, इसी को सेंटेंस फॉर्म में कन्वर्ट करके आपका सोल्यूशन तैयार हो जाएगा, आपका आंसर रेडी हो जाएगा. लेट अस रीड द क्वेश्चन. X entered into a contract with Y to supply 1,000 bottles at 5 rupees per bottle to be delivered at a specific time. तो जैसे हम पढ़ते रहेंगे वैसे ही हम अपने नोट्स भी बनाएंगे. X promised to supply 1,000 bottles at 5 rupees per bottle. So that is the selling price. Thereafter, he contracts with Z for the purchase of 1,000 bottles at 4 rupees 50 पैसे per bottle. तो X क्या करने वाला था, 4 rupees 50 पैसे में बॉटल्स खरीद के 5 rupees per bottle में आगे बेचने वाला था. It means he was planning to earn 50 पैसे per bottle as profit. Immediately आपके माइंड में ये कैलकुलेशन शुरू हो जानी चाहिए. He told Z that I am buying this for the purpose of performing the contract with Y. इसका मतलब है कि X ने जो स्पेशल सर्कमस्टांसेस थे वो Z को कम्युनिकेट किए. ये लिखना मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज मेरा पूरा आंसर इसी पे बेस्ड होगा. नाउ Z failed to perform the contract and the market price on that day was 5 rupees 25 पैसे per bottle. उसने अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं किया and on that day the market price was 5 rupees 25 पैसे per bottle. ठीक है, this is the price on the date of breach. Consequently, X could not procure any bottle, मतलब उसने कहीं और से लेने की भी कोशिश नहीं की, and Y cancelled the contract. Calculate the amount of damages which X could claim from Z under these circumstances. पहले इतना ही पढ़ते हैं. Okay, now इसके पीछे की जो थियोरी है वो याद करने की कोशिश करो. X ने Z के साथ बॉटल्स परचेज करने का कॉन्ट्रैक्ट किया था, बट डिड Z परफॉर्म हिज प्रॉमिस? नो. It means that Z has committed, बोलो, breach of contract. X can claim damages from him. Now the question arises, what kind of damages can X claim from Z? हमने पढ़ा था, देखो, there are many types of damages. सबसे पहले आता है ordinary damage. Ordinary मतलब these damages are recoverable in case of breach. breach हुआ है इसीलिए ये damage हुआ. breach नहीं होता तो ये damage भी नहीं होता. तो ऑर्डिनरी तो रिकवर कर सकते हो, लेकिन अगर स्पेशल सर्कमस्टांसेस थे और वो स्पेशल सर्कमस्टांसेस आपने कम्युनिकेट किए थे, इफ दीज स्पेशल सर्कमस्टांसेस वर कम्युनिकेटेड टू जेड, देन एक्स कैन ऑल्सो क्लेम स्पेशल डैमेजेस. ऑर्डिनरी तो मिलेगा, साथ में स्पेशल डैमेजेस भी मिलेंगे, दैट इज लॉस ऑफ प्रॉफिट भी मिलेगा आपको. अब देखो यहाँ पर ये केस में हम ऑर्डिनरी डैमेजेस कैसे कैलकुलेट करेंगे. Ordinary damage is nothing but the difference between contract price and the market price. It depends कौन damages claim कर रहा है. Sometimes the formula is contract price minus market price या market price minus contract price. है तो difference ही लेना है ना.
अब यहाँ पर ऑर्डिनरी डैमेजेस कैसे आएंगे? सो लेट्स से दैट एक्स he was going to buy the bottles at 4 रुपीज़ 50 पैसे, yes or no? तो ऑर्डिनरली वो क्या बोलता है कि मैं 4 रुपीज़ 50 पैसे में बॉटल्स खरीदने वाला था, लेकिन जेड तुमने देने से मना कर दिया, इसीलिए मुझे मार्केट जाना पड़ा और वही बॉटल्स ऑन द डेट ऑफ ब्रीच 5 रुपीज़ 25 पैसे के हो गए, तो मैंने 75 पैसे ज़्यादा पे करे। अब यहाँ पर देखो स्टूडेंट्स, एज पर द क्वेश्चंस ही हैज़ नॉट परचेज्ड एंड सप्लाइड द गुड्स टू वाई, लेकिन अगर एक्स उसी दिन डेट ऑफ ब्रीच को बॉटल्स खरीदने जाता तो उसे 5 रुपीज़ 25 पैसे पे करने पड़ते, whereas he would have got the bottles from Z at only 4 रुपीज़ 50 पैसे, so he is ending up paying 75 पैसे per bottle more. तो अगर X ने properly circumstances communicate किए हैं to Z, so then he can claim both ordinary as well as special damage. Always remember students that in case of contract of sale, जहाँ पर sale involved है, the ordinary damages are the difference between contract price and the market price. तो जो चीज़ उसे 4 रुपीज़ 50 पैसे में मिलने वाली थी वो अब उसे 5 रुपीज़ 25 पैसे में मिल रही है, so he is paying 75 पैसे per bottle more. अगर मैं 1000 bottles के साथ उसको multiply कर दूँ then he is paying 750 more. अब लॉ बोलता है कि डैमेजेस क्लेम करने के लिए आपका एक्चुअली परचेज करना या इन अदर केसेस एक्चुअली सेल करना वो ज़रूरी नहीं है। इमेजिन करो अगर आज मैंने सेल किया होता तो कितने में मिलता, अगर आज मैंने उसे बेचा होता तो कितने में बेचा। सो द फॉर ओनली कैलकुलेटिंग ऑफ डैमेजेस you will consider the price on the date of breach. Okay, so if the circumstances are properly communicated, you can claim ordinary as well as special damage. Special damage is loss of profit. तो यहाँ पर जो बॉटल वो 5 रुपीज़ में 4.5 में खरीद के 5 रुपीज़ में बेचने वाला था, 50 पैसे पर बॉटल प्रॉफिट कमाने वाला था, वो उसको कमाने का मौका नहीं मिला. That is ordinary, that is special damage. Now what if the circumstances were not communicated? They have asked that also in the question. देखो उसका second part देखो, what if these that special circumstance is not informed, then you can claim only the ordinary damage which is 0.75 पैसे per bottle. स्टूडेंट्स अगर आप क्वेश्चन का आंसर जो मॉड्यूल में दिया है, ये एक एग्जाम क्वेश्चन है, अगर आप इसका आंसर देखोगे ना, दे हैव नॉट एक्चुअली मेंशन कि वो ऑर्डिनरी के साथ स्पेशल भी क्लेम कर सकता है. उन्होंने सिर्फ इतना बोला ही कैन क्लेम लॉस ऑफ प्रॉफिट दैट इज 50 पैसे, बट आप वहां पर लिख सकते हो दैट ही कैन क्लेम ऑर्डिनरी एज वेल एज स्पेशल डैमेजेस. ऑर्डिनरी होंगे 750 प्लस स्पेशल होगी 500, एंड इफ द सर्कमस्टांसेस आर नॉट कम्युनिकेटेड देन ही कैन क्लेम ओनली द ऑर्डिनरी डैमेजेस. अगर आप इसकी थ्योरी देखते हो ना स्टूडेंट, यहाँ पर आगे उधर क्लियरली लिखा है दैट यू कैन क्लेम ऑर्डिनरी एज वेल एज स्पेशल डैमेजेस. ये देखो यहाँ पर लिखा है इन केस ऑफ स्पेशल डैमेजेस, मैं हाईलाइट भी कर देती हूँ आपको, where the party receives the notice of special circumstances, he will be liable not only for damages naturally arising and directly but also for special damage. मतलब ordinary तो मिलेगा, साथ में स्पेशल भी मिलेगा, बट इन्होंने पता नहीं क्यों मॉडल आंसर में सिर्फ स्पेशल के बारे में मेंशन किया है, ये लिखा ही नहीं है कि ऑर्डिनरी प्लस स्पेशल दोनों मिलेगा. नाउ व्हाट हैव दे रिटन इन द आंसर, ये तो कैलकुलेशन का पार्ट हो गया. In the answer 3 things are required to be mentioned. What will be mentioned? ये देखो मैंने यहाँ पर हाईलाइट किया है. In the first paragraph in theory, you will write upon section 73 which tells कि जो ordinary damages है वो तुमको मिलेंगी, रिमोट डैमेजेस नहीं मिलेंगे. तो सेक्शन 73 के बारे में लिखेंगे. स्पेशल डैमेज का क्वेश्चन है इसीलिए स्पेशल डैमेजेस एक्सप्लेन करेंगे, एंड वी विल ऑल्सो मेंशन ओनली द नेम ऑफ द केस लॉ हेडली वर्सेस बैक्सेंडेल. मेनी अ टाइम स्टूडेंट्स आस्क मी कि मैम पूरा केस लॉ एक्सप्लेन करना पड़ता है क्या? नहीं, आपको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ नाम लिखोगे तो काफ़ी है. फर्स्ट पैराग्राफ में ये लिख दो, केस लॉ का नाम मेंशन करो, एंड देन सेकंड एंड थर्ड पैराग्राफ में आपको ये पूरा कैलकुलेशन दिखाना है. आई जस्ट कीप इट ऑन द फुल स्क्रीन, इफ़ यू वांट यू कैन राइट इट डाउन इन योर नोटबुक. बहुत टाइम ना स्टूडेंट स्क्रीनशॉट ले लेते हैं कि अरे बाद में लिखेंगे, वो फिर बाद में मोबाइल में ही रह जाता है. पॉज द वीडियो, राइट दिस इन योर मॉड्यूल इटसेल्फ, and only then proceed to the second question. Second question is something which many students have always asked me, ma'am, what is the difference between liquidated damages and penalty? ये हम पढ़ते हैं मॉड्यूल में, हम पढ़ते हैं, लेकिन इतने अच्छे से हमको समझ में नहीं आता, तो मैंने सोचा चलो हर बार प्रैक्टिकल क्वेश्चन क्यों करना है,
कभी कभार थ्योरी क्वेश्चन भी किया जा सकता है ना. सो हियर वी विल नाउ डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन पेनल्टी एंड लिक्विडेटेड डैमेजेस. बहुत सिंपल है, मैं आपको एक लाइन में पूरा डिफरेंस समझा दूंगी. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिक्विडेटेड डैमेजेस? स्टूडेंट्स, एक ही चीज आपको याद रखनी है, लिक्विडेटेड डैमेजेस आर प्री एस्टिमेटेड डैमेजेस. क्या है ये? प्री एस्टिमेटेड डैमेजेस. ब्रीच हुआ ही नहीं है, लेकिन पार्टीज पहले ही डिसाइड करके रख देते हैं कि अगर ब्रीच हुआ ना, this damage will be claimed by us. So these are pre-estimated damages. They are decided even before there is breach of contract. So while entering into the contract, these parties have agreed that in case of breach, this is the damage that we will claim. Then what is penalty? Penalty is some unreasonable amount. It is unreasonable or amount, or it's a very high amount of damages. नॉर्मली पेनल्टी का जो एम होता है दैट इज पनिशमेंट. वी इम्पोज पेनल्टी विद द एम ऑफ पनिशमेंट. लेट्स से फॉर एग्जांपल आपने ना नो पार्किंग में पार्क कर दी अपनी कार, और वहां पर लिखा हुआ है दैट वी विल टेक 10,000 रुपीज फाइन. मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, मैंने ऐसे साइन बोर्ड्स देखे हुए हैं जहां पर नो पार्किंग है, 10,000 रुपीज फाइन है. अच्छा, आजकल तो सिग्नल तोड़ दिया हमने, या ओवर स्पीडिंग कर रहे हो, कितना ज्यादा फाइन है, किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ है. अब उस दिन हम ओवर स्पीड कर रहे थे, 80 की लिमिट थी, हम 90 पे थे, 95 पे थे, टिकट आ गई, कितना 1,000 रुपीज. अरे पूरा रोड खाली है, कोई व्हीकल नहीं है, कोई हाईवे है, कोई बंदा भी नहीं चल रहा है, 1,000 रुपीज. 1,000 रुपीज चुभता है ना पे करना. लेकिन ये बात हमेशा हमें याद रहेगी कि ओवर स्पीडिंग नहीं करनी. एक बार हम 1,000 रुपीज पे कर चुके हैं. सो पेनल्टी का एम पनिशमेंट है. इट इज डिसप्रपोर्शनेट टू द एक्चुअल लॉस. ये जो लिक्विडेटेड, जो प्री एस्टिमेटेड डैमेज है, उसका कुछ तो रीजनेबल लॉजिक लगाया है हमने कि हाँ इतना लॉस हुआ तो चलो हम एस्टिमेट कर रहे हैं कि अगर ब्रीच हो गया, इतना मार्केट प्राइस है, इतना इन्फ्लेशन होता है, कुछ एस्टिमेट लगा रहे हैं ना. पेनल्टी में कोई एस्टिमेट नहीं, मन में आया वो बात मैंने बताया. दैट्स द ओनली डिफरेंस बिटवीन लिक्विडेटेड डैमेजेस एंड पेनल्टी. आप सोचोगे मैम इतना सिंपल था क्या? हम इतनी डर रहे थे. मॉड्यूल में क्या है ना, उन्होंने इंग्लिश लॉ और इंडियन लॉ का कंपैरिजन दिया है, इसीलिए आप लोग डर गए. इंग्लिश लॉ मेक्स अ डिस्टिंक्शन बिटवीन लिक्विडेटेड डैमेजेस एंड पेनल्टी. तो मैंने वो हाईलाइट कर दिया आपके लिए. जैसा मैंने हाईलाइट किया है ना, बस वैसा कर लो, आपको कोरिलेशन मिल जाएगा. द फर्स्ट पार्ट इन द मॉड्यूल टॉक्स अबाउट इंग्लिश लॉ. So English law में you can either have liquidated damages or penalty. So what is liquidated damages? These are genuine, logically pre-estimated damages which like they anticipate कि अगर breach होगा so this is the damage that can occur. Whereas penalty it is the sum fixed which is unreasonable. उसका मतलब कोई connection ही नहीं है actual loss के साथ में. It is in the form of penalty that is just to punish. Such a clause is disregarded and the injured party cannot claim more than the amount of actual loss. बहुत अच्छा पॉइंट है यहाँ पर. पेनल्टी होती है ना तो लोगों का माइंड बंद हो जाता है, बोलते 25 लाख, 20,000, 5 लाख. अरे लॉस कितना हुआ है? 500 रुपया. नहीं नहीं, वी वॉन्ट टू टीच यू अ लेसन. कॉन्ट्रैक्ट में लिख दिया डजेंट मीन कि रिकवर कर सकते हो. लॉ बोलेगा ये तो पेनल्टी है. हाँ तुमने प्री डिसाइड किया है, हम मानते हैं, पर इतना ज्यादा नहीं नहीं नहीं, जितना एक्चुअल लॉस हुआ है उतना ही मिलेगा. सो कैन आई से दैट पेनल्टी का जो अमाउंट हम लिख भी देते हैं, अनरीजनेबल अमाउंट लिख भी देते हैं, दैट इज ओनली द मैक्सिमम दैट यू मे हैव टू पे. लॉ बोलेगा ये अनरीजनेबल है, कितना लॉस हुआ है, हाँ इतना ही मिलेगा, चलो. सो पेनल्टी ऑल्दो इट इज डिसाइडेड वो मिलेगा ऐसा नहीं है. इंडियन लॉ में तो भाई कोई डिफरेंस ही नहीं है. इंडियन लॉ बोलता है देयर इज एक्चुअली नो डिफरेंस बिटवीन पेनल्टी एंड लिक्विडेटेड डैमेज. क्यों? क्योंकि हमारे लिए दोनों सेम है. कैसे मिलेगा? जितना रीजनेबल लगता है, और जो आप कॉन्ट्रैक्ट में लिख रहे हो ना दैट विल बी द मैक्सिमम विच वी विल अवॉर्ड. हम एक्चुअल भी देखेंगे, जो रीजनेबल लगा वो देंगे. सो प्री एस्टिमेटेड डैमेजेस है, मैंने देखो नोट लिखा है आपके लिए. Courts will allow only reasonable compensation not exceeding the sum predetermined by the parties. तो सपोज आपने और मैंने एक कॉन्ट्रैक्ट किया कि मैं आपको गुड सप्लाई करूंगी, और मैंने नहीं किया ना तो आप मेरे से 50,000 रुपीज फाइन पेनल्टी ले सकते हो या डैमेजेस ले सकते हो. अब क्या आपको वाकई में 50,000 रुपीज का लॉस होने वाला है? हाँ हाँ, हमारे पास कैलकुलेशन है.
लेकिन जब एक्चुअल, तो मैंने कॉन्ट्रैक्ट में लिख दिया कि 50,000 रुपीज डैमेज होगा, प्री एस्टिमेट कर दिया, लेकिन जब मैंने एक्चुअल लॉस कैलकुलेट किया ब्रीच के बाद तो सिर्फ आया 15,000। अब 15,000 कहाँ और 50,000 कहाँ? लॉ बोलता है 15,000 हुआ ना एक्चुअल लॉस, 50,000 को हम एक मैक्सिमम लिमिट कंसिडर करेंगे, तुमको मिलेगा सिर्फ 15,000 रुपीज। सो दैट इज द मीनिंग ऑफ पेनल्टी। उन्होंने देखो बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी दिए हैं वहां पर। ए कॉन्ट्रैक्ट्स विद बी दैट इफ ए प्रैक्टिसेस एज अ सर्जन ही विल पे 50,000 रुपीज। A practices as a surgeon, the compensation will not exceed 50,000 and it will be reasonable that the court considers, which the court considers as reasonable. A borrows 10,000 from B, gives them a bond for 20,000. अरे borrow किया 10,000, प्रॉमिस कर रहे हो कि मैं तुम्हें 20,000 मतलब डबल, और वो भी 5 ईयरली इंस्टॉलमेंट्स में पे करेगा, दैट विच विल बी पेएबल इन केस द होल अमाउंट बिकम्स ड्यू। ठीक, तुम ले रहे हो 10,000 का लोन, 20,000 प्रॉमिस कर रहे हो कि मैं इन 5 ईयरली इंस्टॉलमेंट्स में पे करूंगा 4,000 का ईच, ये तो पेनल्टी हो गई। नहीं, कोर्ट बोलते हैं ये सब नहीं मिलेगा, जो रीजनेबल हमको लगेगा हम वही देंगे। बट आइडेंटिफाई कर रहे हैं ना वो, कि फर्स्ट केस में आपने कुछ एस्टिमेट लगाया और डिटरमिन किया दिस इज लिक्विडेटेड डैमेजेस, सेकेंड केस में तुमने तो डबल ही कर दिया, दैट इज पेनल्टी। अच्छा, ये सिमिलर केस है, लोन लिया है 10,000 का, इट इज रीपेबल इन 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स, दिस इज नॉट बाय वे ऑफ पेनल्टी, क्योंकि ये तो रीजनेबल लगता है। डिफरेंस बिटवीन भी दिया है, देखो यहाँ पर स्टूडेंट्स, डिफरेंस बिटवीन लिक्विडेटेड डैमेजेस एंड पेनल्टी। लिक्विडेटेड पूरा डिफरेंस बिटवीन पढ़ोगे ना आपको सेम ही लगने वाला है। इफ द सम पेएबल इज वेरी लार्ज, इट इज इन एक्सेस ऑफ द एक्चुअल डैमेज, देन इट इज पेनल्टी। देखो मैंने यहाँ पर हाईलाइट किया, बस आप उतना ही पढ़ के जाओ एग्जाम के लिए। अगर सम बहुत लार्ज है तो वो पेनल्टी है। Where the sum is expressed to be payable on a certain date, that is the amount of transaction, and a further sum is payable in case of default, then this is the amount of transaction and this is the penalty. अगर आपने बोला 20,000 तो तुम्हें देना ही है, और अगर डिफॉल्ट किया ना तो 10,000 एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, तो 20 तो मेरा ट्रांजैक्शन का अमाउंट है जो देना है, और 10,000 मुझे पेनल्टी देनी है। The expression is not final, the sum, if the sum is extravagant, exorbitant मतलब बहुत ज्यादा है तो वो पेनल्टी है। बार बार वही बात कर रहे हैं। सपोज वो बहुत ही ज्यादा है, लाइक यू नो मेरा एम है कि आपको डरा देना, पनिश करना, ताकि आप ये रिपीट ना करो, देन दैट इज पेनल्टी। द असेंस ऑफ लिक्विडेटेड डैमेजेस जस्ट अ प्री एस्टिमेट। In India, courts will award reasonable compensation not exceeding the amount fixed by parties. इसमें मैं explain क्या करूँ आपको, 4 पॉइंट्स लिखे, 5 पॉइंट्स लिखे, सेम ही सेम बात करे। अगर प्री एस्टिमेटेड है तो लिक्विडेटेड है, अगर बहुत ज्यादा है तो पेनल्टी है। पेनल्टी होगी भी तो भी हम तो तुम्हें रीजनेबल ही देने वाले हैं। तो एक ही बात थी तो 4-5 पॉइंट्स क्यों बनाई ना यहाँ पर, बस आंसर क्रिएट कर रहे हैं और तो कुछ भी नहीं लग रहा है यहाँ पर। द कोर्ट्स में असर्टन द एक्चुअल लॉस, दे विल अवॉर्ड द सेम बट नॉट एक्सीडिंग द अमाउंट फिक्स्ड, मतलब हम जो देंगे वो रीजनेबल देंगे, नॉट एक्सीडिंग द अमाउंट फिक्स्ड। 5 पॉइंट से सेम बात हो रही है, मैंने उसको एक ही पॉइंट में यहाँ पर आपके लिए लिख दिया है। सो टू समराइज दिस, लिक्विडेटेड मतलब प्री एस्टिमेटेड, जो थोड़ा रीजनेबली हमने कैलकुलेट किया। पेनल्टी तो भाई मन में आया वो अमाउंट लिख दिया, इट्स एक्सॉर्बिटेंट, इट इज ह्यूज, इट हैज नो कनेक्शन विद द एक्चुअल लॉस। इंडिया में बोलते भाई नीचे आ जाओ, ग्राउंड पे आ जाओ, हवा में मत जाओ। You will get only what we consider as reasonable. It will not exceed the amount which is mentioned in your contract. This is the difference between liquidator damage and penalty, which I have tried to explain in short क्योंकि एक ही एक point बार बार repeat हो रही है। Yes, now I don't want to keep repeating that point. So with this I come to an end of the booster session. मैंने सिर्फ 2 ही questions यहाँ पर किए क्योंकि मुझे पता है इन्हीं 2 unique questions में students को doubt आता है। तो इसी के साथ हमारा बूस्टर लेक्चर खत्म हुआ, लेकिन और भी लेक्चर्स अपलोड करती रहूंगी। 2-3 हमारे एक्ट्स बाकी हैं अभी, सो आई विल कीप पोस्टिंग लेक्चर्स। इन द मीनवाइल सब्सक्राइब टू योर यूट्यूब चैनल थ्योरी मास्टर्स लर्निंग एंड हिट द बेल आइकन ताकि आपको नेक्स्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आता रहे। एंड ऑल्सो विजिट माई वेबसाइट theorymasterslearning.com फॉर एक्साइटिंग लेक्चर्स एंड CA बुक्स।